Namaste. I would like to start by showing my gratitude, expressing my gratitude to Hanumanji, who has been the inspiration, the guide for all the various breathwork techniques that I'm going to share now over the coming 10 days, and many other breathwork, very powerful breathwork techniques as well. So, हनुमान को सबसे पहले याद करते हैं. I would also like to express my gratitude to Dr. Nagendra Guruji of S. Vyasa, who first gave me a platform to start teaching some of the techniques that I have, including the Tridosha balancing via S. Vyasa online courses, and I've done some offline courses for them as well. So, Tridosha balancing, the program that we are going to do now, comprises two parts. The first part is what we call the basic course. In the basic course, the focus is going to be on using techniques to start expelling phlegm, mucus, or kapha, as we call it in Sanskrit, so that the quality of our breath shows a improvement. So that is part one. Over 3 days, you will notice or you will learn different techniques to help with this process. In the second part, which is the advanced course, we will start working with the advanced breathwork techniques to reduce the amount of phlegm in our system, so that the formation of phlegm in the system reduces a little. Now, this is not something that you will notice in a day or 2 days or a week. It's a process. Lungs are actually a very large organ. If you were to open up the lungs and look at the surface area, can you guess how big the surface area is? Can anybody guess? Take a guess. Yeah. The surface area of the lungs is equal to a tennis court. Surface area. Yeah. So the surface area of the lungs is so large because the lungs need to constantly work and absorb the pranic energy and remove the toxins. The lungs are the biggest organ used for removal of toxins in the body. So this is one very interesting fact about our lungs and our respiratory system. Most people breathe shallow and are affected because of a certain tightness in the belly, which is caused by what is called the diaphragm. Diaphragm is a very strong muscle just below the lungs. When the diaphragm is relaxed, it pushes outwards and the lungs expand when we breathe in. And when we breathe out, the diaphragm pushes against the lungs and throws out the air. So the role of the diaphragm is very, very critical. We think it's the lungs, but the lungs on their own do not have muscles. The real muscles are the diaphragm. Whenever there is any stress in our body, in our system, in our mind, the diaphragm tightens. It stiffens up. And when the diaphragm stiffens up, our breathing automatically becomes short, shallow. If you've noticed yogis or heard about yogis, etc., they breathe very differently. They take slower, short, longer, and smoother breaths. As against us, you will also notice whenever there is any stress, any anger, any kind of distress, fear, our stomach feels tight. Our breathing automatically becomes short whenever we are in any kind of stress, fear, anger, depression, anything, any of these negative emotions, they impact our breathing immediately. So therefore, learning to breathe better, the first step in all my programs is what we call belly breathing, which means we relax the system in such a way that when we breathe in, the
diaphragm relaxes enough and moves outward. So if you've seen a little baby at home, whenever you've had a baby, you will notice when the baby breathes in, his stomach tends to go out. When the baby breathes out, his stomach tends to go in. Nobody teaches the baby to do it. It does it on its own. Maybe the Jagat Mata, the Divine Mother has taught the baby to breathe in that way. And it breathes in such a beautiful way. Look at how the baby begins to grow, how the energy begins to collect in his body. His Kundalini Shakti begins to develop. And slowly, as the Shakti becomes more and more available in the body, it begins to start affecting other areas of the body. So you will notice when a baby is born initially, it has, for example, zero interest in anything connected with sex. Sex is a very powerful emotion, it's a very powerful energy. But after the age of 12, 13, suddenly a boy becomes very interested in a girl. A girl becomes very interested in a boy because now that energy has started moving upwards towards Swadhisthana. And that brings inner changes. Hormones start getting released, and the Swadhisthana chakra becomes active. Therefore, boys become interested in girls, girls become interested in boys. In ancient India, particularly, we had a very powerful system of brahmacharya. Brahmacharya was practiced uniformly by everybody in the early stages. And those days, they did not have the disturbances such as pornography and all other kinds of things that happen. And since children are young, and since parents usually do not have that level of comfort with their children, they are not able to guide the children. So much of this energy, because the children suddenly feel this energy, much of this energy is either wasted, leaked, or lost. When this happens, the energy is not available to move upwards. It stays trapped in the lower chakras. And therefore, with all this wastage of energy, etc., very soon you'll notice that many young boys and girls, they start looking, feeling, appearing to be disinterested in anything, because that the energy that was becoming available has been misused or lost or depleted in some way. So therefore, understanding there are two things only. Jivan, for life to happen, we need two things: energy and consciousness. Shakti and Shiva. As long as Shiva and Shakti are present in a good measure in our body, we will develop, we will grow. Our consciousness will change. If either of them is depleted for any reason, life becomes a very different kind of life. So, therefore, having the energy, understanding the energy, using that energy in a responsible way is very important. But how are we to guide the youngsters? Sometimes maybe schools can do it or teachers can do it. Somebody is saying, can I repeat once again? So I was trying to explain that the energy that begins to grow in a child, uh, हिंदी में समझाने की कोशिश I'll try to use both languages. I'll speak a little bit of English and then a little bit of Hindi as well. तो प्रयत्न करूंगा थोड़ा अंग्रेजी में समझाऊं और फिर थोड़ा हिंदी में समझाऊं. समय थोड़ा अधिक लगेगा, बट मे बी इट इज ओके. सो एज जैसे जैसे अपन अपनी ये ऊर्जा बढ़ने लगती है, इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं. जब ये कुंडलिनी शक्ति अच्छे तरह से बढ़ जाती है शरीर में, इट स्टार्ट्स ऊपर की तरफ जाने लगती है. इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ first as sexual energy, and then in other ways like interest in doing social things, doing something for the family, doing something for society. तो सामाजिक कार्यों में कुछ ना कुछ हेल्प करना. You'll see some children are very good with those things as well, because they have used their energy in a slightly more responsible way. Are we clear? Any question? तो ये इस ऊर्जा को अच्छे से व्यवहार करना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है. सॉरी, कभी कभी आई मे नॉट फाइंड वर्ड्स इन हिंदी, पार्डन मी यदि यदि वैसा होता है तो.
So let's start first with belly breathing. पेट से सांस लेने का क्रिया. अब are you familiar how to do belly breathing? Rachna ji says yes. Dr. Radha says yes. Very good. Anybody else? No? So we'll take a few minutes. I'll try and explain how to do belly breathing. First thing is lie down on a bed or a yoga mat. If you notice in my notification, एक request है कि keep a yoga mat handy and also a small or a thin cushion. So let's start. I'll show you how to lie down so that you can access belly breathing or start belly breathing. Can you see me? I'm lying down on a couch. My legs are folded, knees are pointing to the ceiling. दिख रहा है आपको? Can you see me? Picture clear है? Yes, 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 yes. Okay, very good. So I keep one hand on my belly or one hand on my chest. See if you can observe. I'm not doing anything. ये स्वयं हो रहा. Where is the movement? समझ में आ रहा है? कहाँ पे हाथ, कौन सा हाथ हिल रहा है? On right hand, Right hand. कहाँ पर है वो? belly. Stomach. Yes. So the stomach is automatically going up and down as I breathe in and breathe out. The chest is steady. There's no movement in the chest. जब ये posture लेते हैं, we can't be like this all day. ये posture सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि आप ये notice करो कि कैसे हो रही है belly breathing, क्यों हो रही है belly breathing. So when you hold this posture, automatically the body becomes a little relaxed. When the body becomes relaxed, the mind also becomes a little relaxed. They are connected. Body and mind are interconnected. So if you lie down on a bed or a sofa or a yoga mat and hold that posture for a few minutes, आप स्वयं देखेंगे कि belly breathing शुरू हो गई अपने आप. आपको करना नहीं है. That is important. I don't want you to do belly breathing. Belly breathing करना नहीं है आपको. आपको belly breathing होने देना है. Are you clear? Belly breathing होने देना है. तो जैसे अभी इस posture में when I lay down, automatically belly breathing happens. So if you also lie down, you can try. If you have a yoga mat handy, lie down like I showed you and observe how automatically the body starts getting into the belly breathing mode. अपने आप वो पेट की सांस की क्रिया शुरू हो जाती है. करके देखिए. Some of you please lie down on a yoga mat or bed or whatever and observe belly breathing हो रही है कि नहीं. करने से होगा देखिए. And it's very important. I'll give you the reasons why. अपने शरीर में जो कुछ भी होता है, like for example when we breathe, the heart beats, the food is digested, the blood circulates. ये सब क्या हम करते हैं क्या? Do we do this? Do we beat the heart? Do we circulate the blood? Do we digest the food? It happens on its own. Is that right? It happens on its own because the body has a system called the central nervous system, or it has a actually there are two, but there is a nervous system which has two parts. One is called the sympathetic nervous system, the other is called the parasympathetic nervous system. तो सपोजिंग हमें कोई चीज का डर है, कोई चीज का हमारे ऊपर में there is a fear or there is a threat. Whenever there is any threat to us, automatically the sympathetic nervous system becomes active. स्वयं sympathetic nervous system active होता है. जब sympathetic nervous system active होता है तो ऑटोमेटिकली शरीर में क्रियाएं, शरीर ऑटोमेटिकली अपने रिसोर्सेज पाँव में, ब्रेन में, हाथों में, इन सब एरियाज की तरफ में भेजता है so that the body can take action to protect itself. तो यदि सपोजिंग आई एम इन डेंजर, व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? यदि मुझे कोई तरह का भय है, कोई तरह का मेरे ऊपर थ्रेट है, तो व्हाट कैन आई डू?
Can you guess what are the things one can do when one is under threat? बताएं. Try to tell me. Please try and answer. Run. Yeah, that is one. You can either run away or you can fight. Yes. इसके अलावा क्या कर सकते हैं? If there is any danger to me, I can run away or I can fight. If I feel the danger is, if I feel the danger is not very strong or I can defeat the danger, then maybe I'll fight. But if I feel whoever the danger is, wherever the danger is coming from, यदि वो मुझसे अधिक ताकतवर है, then I will have to run away. No choice. To protect myself, so I can survive. The other system is called the parasympathetic nervous system, जिसमें शरीर, yeah, जी हाँ, fight and flight. Perfect, Shilpa ji. So that is also called the fight and flight response. यदि danger है, threat है, the body can respond in fight or flight. And there is one more. It's called freeze. कई बार भय में अपना शरीर एकदम जकड़ जाता है. We can't do anything. है ना? So these are the responses that the body can create for any risky, dangerous, difficult situation. But when we are relaxed, that is when the body is able to heal itself, repair itself, fix itself, etc. But that means we have to be in the parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system. So parasympathetic nervous system mein body will find its own healing, cure, repair, etc. However, if we are mostly in the sympathetic nervous system, the body will not be able to heal itself. राकेश जी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलूंगा because some people understand हिंदी, some understand English. तो मैं दोनों में वो करूंगा, alternate करूंगा तो try and make sense. You know, यदि कुछ कुछ समझ में नहीं आता तो जब हिंदी बोलूंगा तो try and understand that because everyone is familiar with different languages. I'll try and explain a little in Hindi also. So जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव तो शरीर अपने आप को हील कर सकता है, अपने आप को स्वस्थ कर सकता है. किंतु सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्वयं को हील करने की प्रक्रिया शरीर की कम हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हैबिट पैटर्न, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर्स इन लाइफ, many, in fact most human beings tend to be in the sympathetic nervous system. यानी कि sympathetic nervous system में ही अधिकतम रहते हैं. तो आप देखें, you've heard the phrase road rage. आप गाड़ी चला रहे हो, suddenly गुस्सा आ जाता है because you are in the sympathetic nervous system. You are not able to control your anger. अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर सकते. कहीं कुछ डेंजर लगा, कहीं कुछ हुआ, immediately वो emotions active हो जाते हैं because we are in the sympathetic nervous system. But when you are in the parasympathetic nervous system, जब आप parasympathetic में रहोगे तो आप काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, इतने जल्दी आपको गुस्सा नहीं आएगा, इतने जल्दी रोड रेज वगैरह नहीं होएगा. अभी क्लियर? Is this clear to you? नहीं है तो बताएं, फिर I'll explain a little more जैसी आवश्यकता होती है. तो when we do belly breathing, जब belly breathing करते हैं तो शरीर ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ आता है. जितना शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहेगा उतना शरीर अपने आप को हील करने में ईज मिलेगा उसको. क्लियर? ओके, शैल वी मूव ऑन. तो बेली ब्रीदिंग करना पहली चीज है. बेली ब्रीदिंग आपकी अच्छे से होती रहेगी तब फिर आगे की जो क्रियाएं हैं उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा. तो 5 मिनट के लिए बैठे बैठे हो सके, यदि लेट नहीं सकते तो बैठे बैठे ट्राई करिए. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. देखिए जब आप सांस भीतर लेते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है. जस्ट ऑब्जर्व. मैंने इसके बारे में डिटेल का बेली ब्रीदिंग का वीडियो शेयर किया है ग्रुप में. आशा करता हूं आपने देखी होगी वो वीडियो, और नहीं देखी है तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा. एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल और अधिक आपको क्लैरिटी मिल जाए उसमें. ओके, सो बेली ब्रीदिंग सबसे आवश्यक है
इसके ऊपर अपन बाकी सब क्रियाएं करेंगे. ओके, shall we go on? So belly breathing importance, are you clear? We need to be in the belly breathing mode because इसमें शरीर अपने आप को हील कर सकता है. शरीर, मन, इमोशंस सब शांत रहेंगे, अपने आप को रिपेयर कर सकेंगे वगैरह. ये लाभ मिलेगा. अच्छा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन सी आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और जब आप कुछ बोलोगे तो इट विल बी इजियर कम्युनिकेशन. सो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस इफ यू आर कन्वीनियंट. इफ देर इज समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग यू और समथिंग, तब एक अलग बात है. तो थोड़ी देर फोकस करिए अपने ब्रेथ के ऊपर में. देखिए बेली ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. हो रही है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए या कंफर्म कर दीजिए, यस लिख दीजिए चैट में. रचना जी, यस हो रही है बेली बेली ब्रीदिंग, वेरी गुड. और ओके, रचना जी सर ओके, दिनेश जी सर ओके, वेरी गुड, यस. सुचित्रा, यस, वेरी गुड. सो बेली ब्रीदिंग, दिस इज द फाउंडेशन ब्रेथ. बेली ब्रीदिंग होना आवश्यक है. राकेश शर्मा जी, यस, बहुत अच्छा. तो सबसे पहले बेली ब्रीदिंग करिए. बेली ब्रीदिंग करने का अर्थ ये नहीं कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करें. दैट्स नॉट इनफ. बेली ब्रीदिंग शुड बिकम योर डिफॉल्ट. इट शुड बिकम योर नॉर्मल ब्रेथ. यानी कि जब भी आपकी आपकी आपका ध्यान जब जाए ब्रेथ के ऊपर में, यू शुड नोटिस दैट बेली ब्रीदिंग इज हैपनिंग. If it is not happening, try to let it happen. Don't do belly breathing. Let it happen. The same way as when you lie down on the bed and you fold and you bring your heels near your buttocks and your knees are pointing to the ceiling, उस posture में आप देखोगे automatically belly breathing starts. That is what you need to do. You need to do that so that internally आप उसमें awareness हो जाए कि क्या करने से बेली ब्रीदिंग स्वयं होती है. क्लियर? आई डोंट वांट यू टू डू बेली ब्रीदिंग, आई वांट बेली ब्रीदिंग टू हैपन. वेरी इंपॉर्टेंट. जितना शरीर आपका बेली ब्रीदिंग के से जुड़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली होने लगेगा, उतना ही आपका शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ने लगेगा. Now I'll tell you something very interesting that happens when we are in the parasympathetic nervous system. जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं तो एक अंदर में एक बहुत मार्वलस चीज होती है. कोई गेस कर सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? अपने अंदर की देखिए, आवर बॉडी इज 70% वाटर, 70% जल है. व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? व्हाट डज वाटर वांट? Water, the nature of water is to flow. If the water in our body, not as water only, it is in different forms. जैसे रक्त भी एक तरह का water है. Lymphatic system, जिसे I think जल ही बोलते हैं हिंदी में, lymphatic system, वो भी जल है. Similarly, in our digestive system, there is a certain amount of water. So water forms the basis of almost everything in our system. And this water needs to flow. जितने आराम से ऊपर नीचे जाएगा, अपने शरीर में अलग अलग अंगों को जो चाहिए, the nutrients, the resources required by different parts of the body will come to those parts. And उनमें जो टॉक्सिन्स भर गए हैं, whatever toxins जो निकलने की चीजें हैं, वो आसानी से निकलेंगी. जितने आसानी से ये प्रक्रिया होगी, यानी कि what the body needs, it's getting, and what the body needs to throw out, it is being thrown out. The more easily this happens, the more easily the body will be able to heal and repair itself. So the question about what happens when we are in the parasympathetic nervous system is, हमारी जो भी ये नाड़ियां हैं जो जल को ऊपर नीचे ले जा रही है, the channels that are carrying all this liquid in our system, they tend to relax and वाइडन. दिख रहा है आपको? जैसे सिकुड़ गई या उससे फैल गई. जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है तब वो सिकुड़ जाती है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है तब ये फैल जाती है. सो द फ्लो बिकम्स मच मच इजियर. फ्लो बिकम्स इजियर एंड देयरफॉर जो ब्लॉकेजेस होते हैं सिस्टम में, those blockages slowly start getting resolved, dissolved, taken out of the way.
जो ब्लॉकेजेस बन जाती है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है, क्योंकि फ्लो बढ़ गया। व्हेन द फ्लो इंक्रीजेस, तो ये धीरे धीरे ब्लॉकेजेस कम होंगी, धीरे धीरे निकल भी जाएंगे। एंड व्हेन दीज ब्लॉकेजेस गो अवे, एवरी ऑर्गन, शरीर के हर अंग को, हर ऑर्गन को जो आवश्यक चीजें मिलेंगी और जो निकलने का है वो आराम से निकलेगा। So are you clear? Why we need to do belly breathing? Why we need to be in the parasympathetic nervous system? So that automatic vasodilation, the term used for that in English is vasodilation. Vaso connected with our vessels. Vasodilation माने कि चौड़ा होना, उसका ऑपोजिट है वेजो कंस्ट्रिक्शन, पतला होना। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। बिकॉज प्रेशर पड़ता है शरीर में अलग अलग जगह पे, वो नाड़ियां सिकुड़ने लग जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो यू कैन इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट हैज टू बीट हार्डर। वो हार्ट को और मेहनत करनी पड़ेगी कि रक्त का संचलन अच्छे से हो, क्योंकि वो जिस जिस रास्ते के थ्रू वो जा रही है वो सिकुड़ गई है। सो देयरफॉर बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है जितना अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं। मुझे भी हुआ था। आई वॉज ऑल्सो इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम एट वन टाइम। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बेली ब्रीदिंग करना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरा शरीर एक अलग बैलेंस में पहुंचने लगा। तो जो हाइपरटेंशन की दवाई शुरू हुई थी, बीपी मेडिकेशन दैट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ बीपी प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, आई गेव इट अप। एंड नाउ फॉर द लास्ट 10-12 years I don't have to have this medication at all. Zero medication, because प्रेशर का ऑटोमेटिकली एक लेवल ठीक हो गया। So the body gets into a very good condition by something as simple as belly breathing. Almost 80-90% of diseases in the body can be reduced or even healed just with belly breathing. डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। किसी को गैस, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, दैट विल स्टार्ट इंप्रूविंग। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ विजिबल चेंज, नॉट इमीडिएटली, इन अ फ्यू डेज। एंड वंस यू अंडरस्टूड, एक बार आपने समझ लिया और उसको जब चाहेंगे कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आपका अपने शरीर के ऊपर में नियंत्रण बढ़ जाएगा। यू विल गेन greater control over your systems just by allowing belly breathing to happen on a regular basis. जिस दिन आपका बेली ब्रीदिंग नहीं होगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन यदि हो जाता है ऐसा, तो आप नोटिस करोगे कि आपको थोड़ी, यू आर फीलिंग अ लिटिल अनवेल, थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है, ऐसा आपके अनुभव में आएगा। और जैसे जैसे आप बेली ब्रीदिंग करोगे, यू विल फाइंड यू आर गेटिंग टुवर्ड्स ग्रेटर वेलनेस। सो दैट इज व्हाई बेली ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए आपकी बेली ब्रीदिंग हो रही है क्या? ऑब्जर्व, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। Guruji, नहीं हो, one question. श्री रचना जी। ये belly breathing में some people says कि inhale from the nose, exhale from the mouth. See, there are many techniques, many ways of doing it. किंतु belly breathing के लिए exhale from the mouth करना आवश्यक नहीं है। Which is better? I prefer nasal breathing. Maximum breathing should be automatic, with the nose. बस खाली belly वो relaxed state में रहेंगे तो आपकी belly breathing automatically होती रहेगी। और जैसे जैसे आपकी वेजो डायलेशन होगी, आप देखोगे कि योर नीड फॉर ब्रेथ्स रिड्यूसेस। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ब्रेथ्स। जैसे आप कुत्तों को देखेंगे, डॉग्स टेंड टू ब्रीथ मच फास्टर। उनकी आयु कितनी है? 12-13 वर्ष। टॉर्टिस, कछुआ, उसकी ब्रीदिंग बहुत स्लो है, आई थिंक 4 ब्रेथ्स पर मिनट एस्टिमेटेड है। It lives for 200, 300, 400 years. मनुष्यों में भी आप देखोगे, जिसके ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी ब्रीदिंग शॉर्ट है, उसका जीवन भी कम हो जाता है। तो आप बेली ब्रीदिंग करोगे, एक तरफ आपको ये लाभ मिलेगा कि यू आर गोइंग टू ग्रेटर लेवल्स ऑफ वेलनेस, एंड द अदर थिंग इज दैट इट विल हेल्प यू live a longer life. Not just a longer life, but a better and longer life. Therefore, in most of my writings connected with breath, I often write to breathe better is to live better.
This is almost like a standard comment that I add in many of my pieces that I write on breath, etc., etc. Especially on breath connected with tridosha balancing, etc. हो रही है, आप आशा करता हूँ थोड़ी थोड़ी बेली ब्रीदिंग हो रही है आप लोगों की, जिनकी नहीं हो रही थी पहले। यदि आपने बेली ब्रीदिंग का वीडियो देखा है, इट विल बी इजियर फॉर यू। नहीं देखा तो मैंने ग्रुप में शेयर किया, प्लीज वॉच दैट वीडियो। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई एम नॉट डूइंग अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हियर बिकॉज यहाँ पे अपना फोकस कुछ और है। तो आशा करता हूँ, फिर से बोलता हूँ कि आपकी बेली ब्रीदिंग हो रही है। कुछ लोगों ने मुझे थम्स अप दिया, कुछ और भी दें तो और अच्छा लगेगा। बेली ब्रीदिंग हो रही है, वेरी गुड। डॉक्टर रीटा, वेरी गुड। शिल्पा जी, वेरी गुड। ब्रीदिंग गेट्स फास्ट इन स्ट्रेस, हाउ फाइन आई एम, हाउ स्लो एम आई डूइंग। ये किसी ने मैसेज भेजा है, राधा नायर जी ने। यस, जब भी स्ट्रेस में होंगे आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर, जहां वो टाइटनेस होगी इन द बेली, ऑटोमेटिकली योर ब्रीदिंग विल बिकम शॉर्टर एंड यू विल टेक मोर ब्रेथ्स। और जैसे आपकी ब्रीदिंग रिलैक्स हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, डीपर ब्रीदिंग हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट चीज करके देखते हैं। I started just now, I think it's happening. Xiaomi, Xiaomi जी बोल रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चलिए, वेरी गुड। सिट रिलैक्स्ड, बेली ब्रीदिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रही है तो धीरे धीरे उसकी तरफ जुड़ते जाएं। अब आप नोटिस करिए ब्रेथ को, जो सांस आप ले रहे हैं, द ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग, observe where your breath is going. It comes in through the nostrils. Try to observe the path of the breath. कहाँ तक जाती है? लंग्स तक, चेस्ट तक जाती है, बेली तक जाती है, बेली बटन नाभिक के एरिया तक जाती है, कि उसके भी नीचे मूलाधार तक जाती है। थोड़ा ऑब्जर्व करके बताएं। जितना आप रिलैक्स रहोगे, आपको अनुभव होगा कि थोड़ी ब्रीदिंग डीप जा रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बॉडी में तो लगेगा शैलो है, खाली चेस्ट तक जा रही है। बताएं कहां तक जा रही है आपकी ब्रेथ। प्लीज ऑब्जर्व एंड टेल मी। बताएं बताएं, आंसर मी। अप टू थ्रोट, चेस्ट। આ નસીબદાર સોનું છે જ નહીં ગળદી. सॉरी मीना जी, क्या बोला आपने? एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ी आवाजें आ रही थी। डॉक्टर राधा से स्टिल मूलाधार, वेरी गुड। डॉक्टर राधा, वेर आर यू, वेर आर यू डॉक्टर राधा? वेर इज डॉक्टर राधा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ, कुछ लोगों की सांस मूलाधार तक जाती है, वो बहुत अच्छा। कुछ लोगों की सांस बेली बटन तक जाती है, नाभि की एरिया तक जाती है, वो भी ठीक है। कुछ लोगों की खाली छाती तक जाती है, वो थोड़ा कम है। योर रिलैक्स रहोगे, लोअर एब्डोमेन, विद्युत बिहारी दास, वेरी गुड। लोअर एब्डोमेन, एक्सीलेंट। मूलाधार तक, दिनेश मेहता जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आपकी सांस यदि मूलाधार तक जा रही है तो आपको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे उसके, और उसको करते जाइएगा, उसे छोड़िएगा मत। बेली ब्रीदिंग के साथ में कंबाइन करते रहिए कि आपकी सांस मूलाधार तक पहुंच सके। वरना मैं कई और दूसरे प्रोग्राम है जिसमें वो भी सिखाता हूं कि किस तरह से आपकी सांस मूलाधार तक जा सके, वो दूसरे प्रोग्राम में सिखाता हूं, इसमें नहीं। तो आशा कर रहा हूं अच्छे से आपकी बेली ब्रीदिंग हो पा रही है। गुरुजी, Sorry, बताएं। मेरा एक डाउट है, पूछूं? जी पूछे। हाँ, सांस लेते हैं ना, व्हेन वी आर ब्रीथिंग, वो मूल बंद करके जाएगा तो मूलाधार तक जाएगा। आवश्यक नहीं मेरा है। इधर तक जा रहा है लेकिन उधर तक नहीं पहुंच रहा है, मूलाधार यदि, तक। हाँ, तो क्योंकि आदत हो गई है स्वादिष्टान ना। चक्र तक ही ये खींच रहा हूँ, लेकिन यदि वो मूलाधार तक नहीं हो रहा है। यदि स्वादिष्टान तक भी जा रहा तो भी काफी अच्छा, क्योंकि ओ, बहुत लोगों का वहां तक भी नहीं जाता। और धीरे धीरे आप रिलैक्स होना सीखेंगे, धीरे धीरे ट्राई करते जाएंगे तो और सांस नीचे तक जाने की संभावना बढ़ेगी। द मूल बंद पॉसिबिलिटी, करने की जरूरत नहीं है ना? आवश्यक नहीं है। आप करना चाहते हैं कि कोई क्रिया आपने सीखी भी है, जानते हैं कैसे करते हाँ, हैं, तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके इन ओके, ब्रेथ थैंक के यू, साथ में कर सकते थैंक यू। हैं जी। एनीवन एल्स? तो बेली ब्रीदिंग की वीडियो काइंडली देख लीजिएगा। आप लोग सब उस ग्रुप में है क्या, त्रिदोषा बैलेंसिंग कफ रिडक्शन वाले ग्रुप में है क्या आप लोग सब? एवरीवन इज देयर? या प्लीज बी इन द ग्रुप। उसमें सारी
अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा, आज आपने जो लिंक व्यवहार किया है इसमें आने के लिए, अगले 2 दिन, 2 more days, कल और परसों भी उसी लिंक को व्यवहार करिएगा इस प्रोग्राम में आने के लिए। उसके बाद में एडवांस्ड कोर्स होगा जो, उसके लिए दूसरा लिंक दिया जाएगा। जिन्हें इंटरेस्ट है एडवांस कोर्स करने के लिए, तो उन्हें या तो कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आशा करता हूं कर सकेंगे। जिनकी जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो कर सके, वो मुझे मैसेज भेजेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो ना करें तो भी एडवांस कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक छोटा सा फी इसलिए रखा गया, कंट्रीब्यूशन है वो भी, कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको इतना देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। यदि यदि आप उस करते हैं तो इस प्रोग्राम को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपने जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा होगा इस प्रोग्राम के बारे में, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। इसके अलावा भी बहुत खर्चे हैं, सोशल मीडिया का भी खर्च है, तो वो कवर हो जाए। मुझे इसमें, दिस इज बीइंग डन अंडर राजयोगी पावर ऑफ ब्रेथ फाउंडेशन। ये चैरिटेबल एनजीओ है ये, और इससे खाली लोगों के श्वास में कैसे इंप्रूवमेंट हो सके इसके तरफ हम प्रयत्न करते हैं। और जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें कोई कोई कुछ देखता नहीं है, समझता नहीं है, तो मैं कलकत्ता में रहता हूं, तो उन्हें, गरीबों को भी हर हफ्ते श्वास की प्रक्रियाएं सिखाते हैं, तो कुछ कुछ खाने को देते हैं, उन्हें दवाइयां देते हैं, फ्री में देते हैं। ये करते हैं इन द राजयोगी पावर ऑफ ब्रेथ फाउंडेशन। तो राजयोगी पावर ऑफ ब्रेथ फाउंडेशन को सपोर्ट मिलेगा तो वो अपना काम जारी जारी रख सकेगा, कर पाएगा अच्छे से। वो है, इफ यू विश टू डू इन द एडवांस कोर्स। जी शिल्पा जी, आई बिलीव इन एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू शिल्पा जी, सो काइंड ऑफ यू। नाउ बेली ब्रीदिंग होते होते अब अपन नेक्स्ट चीज में जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द श्वासकोश शुद्धि क्रिया। तो जो त्रिदोषा बैलेंसिंग प्रोग्राम है, इसका पहला जो हिस्सा है, इसका नाम है श्वासकोश, लंग्स शुद्धि क्रिया, लंग प्यूरिफिकेशन टेक्निक। जैसा अभी कुछ देर पहले अपन बात कर रहे थे, लंग्स आर एक्चुअली अ वेरी लार्ज ऑर्गन। इसकी सरफेस एरिया इज अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट देखा होगा आपने, बहुत बड़ा होता है। तो यदि सरफेस एरिया लंग्स की देखेंगे, इट इज एज बिग एज द एज अ टेनिस कोर्ट। तो इस टेनिस कोर्ट की जितनी जगह, या जो इतनी सी जगह में है, यहाँ पे क्या क्या, जैसे स्टेल एयर कहाँ पे ट्रैप्ड है, कहाँ पर म्यूकस जमा है या फ्लेम जमा है, कफ जमा है, ये किसी को पता नहीं। और जितना वो धीरे धीरे जमते जाएगा, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया अफेक्ट करेगा। अपनी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगी, आउट ऑफ ब्रेथ फीलिंग करेंगे। डज एनीबॉडी फील आउट ऑफ ब्रेथ? किसी को अस्थमा है, सीओपीडी है? डॉक्टर रीटा, यू हैव एस्मा? ओके, तो आप ये करेंगे प्रोग्राम, आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज उसमें मिलेगा। बट करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट चेंज मिलेगा। यू विल डू द टेक्निक, यू विल गेट रिजल्ट्स। तो श्वास को शुद्धि क्रिया, इसका पहले, एनीबॉडी एल्स? और किसी को है अस्थमा, सीओपीडी? सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक माने जो बहुत लंबे समय तक चला, ऑब्स्ट्रक्टिव माने जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, व्यवधान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग कम्स इन द वे, ब्लॉक आता है जैसे। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, पल्मोनरी मींस लंग्स डिजीज। तो सीओपीडी काफी सीरियस कंडीशन है, मुझे भी थी। आई वॉज अ हेवी स्मोकर फॉर 40 years, और 20 वर्ष मैंने प्रतिदिन 40 सिगरेट पी। तो मैंने अपने आप को बहुत डैमेज किया, किंतु इन क्रियाओं ने मुझे ठीक इस हद तक कर दिया कि मुझे कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है ब्रीदिंग के लिए। मेरी सांस फूलती है, डॉक्टर से ये, या सांस फूलती है, तो अब ये क्रिया करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सो मुझे जब ये कंडीशन हुई, तो डॉक्टर वगैरह बोलते थे कि कुछ इनहेलर्स लेने की आवश्यकता है। इनहेलर्स में स्टेरॉइड्स भी होते हैं, एंड दे आर वेरी एक सेकंड म्यूट कर देता हूं मैं सबको। किसी को बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। सो आई एम जस्ट म्यूटिंग एवरीबॉडी सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो मुझे वो इनहेलर वगैरह लेने के लिए डॉक्टर बोलते थे, और
निमोनिया के लिए इंजेक्शन लेने के लिए बोला, बोला कि हर साल फ्लू का वैक्सीन लेना पड़ेगा। मैंने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा, ना मैं कोई औषधि लेता हूं फॉर सीओपीडी, ना कोई न्यूमोनिया का वैक्सीन लिया, ना कोई फ्लू का वैक्सीन लिया। मैं सिर्फ श्वास की क्रियाओं से अपने शरीर को चलाता हूं और बहुत अच्छे से चलता। I may look older, but I'm 67 years old and I am on zero medication. कोई दवाई की मुझे आवश्यकता नहीं है। जबकि शुरू हुई थी, कई तरह की दवाइयों की आवश्यकता हुई थी, अब कोई आवश्यकता नहीं है। सो ब्रेथ कैन हील यू। जुड़ेंगे था, इफ यू कनेक्ट विथ योर ब्रेथ, इट विल हील यू। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। मोस्ट पीपल टेक द ब्रेथ फॉर ग्रांटेड, सैडली। आई डोंट टेक माई ब्रेथ फॉर ग्रांटेड। हनुमान जी ने मुझे ये ज्ञान दिया कि ब्रेथ से जुड़ते जाओ, और धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई। इतनी अलग अलग तरह की क्रियाएं सीखी अपने आप अंदर से, जैसे हनुमान जी ने मुझे अंदर से ही सिखाया। कितनी तरह की अलग अलग बीमारियां ठीक की। आपने हैव यू हर्ड ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड फाइब्रोमायल्जिया? नाम सुना है किसी ने? फाइब्रोमायल्जिया। शिल्पा, क्या होता है? शिल्पा जी, क्या होता है फाइब्रोमायल्जिया में? सर इट्स अ क्रॉनिक पेन और कहीं भी बहुत पेन रहता है, इट्स वेरी पेनफुल। It's a very chronic pain. Usually you feel it in the back, shoulders, and move करता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। और इसी से संबंधित एक होता है साइटिका, वो बटक्स में से लेके पाँव की तरफ जाता है वगैरह। ये मैंने यस सर। ठीक करी विद ब्रेथ। फाइब्रोमाइल्जिया भी ठीक हो गया। सो देयर वाज अ टाइम मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, रात को बहुत पेन रहता था, नींद नहीं आ पाती थी। सोते सोते मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी थोड़ी कृपा कर दो अपने भक्त के ऊपर, बिकॉज आई ट्रस्ट ब्रेथ। एंड हनुमान जी पवन सुत हैं, सन ऑफ द गॉड ऑफ विंड। सो आई ट्रस्टेड दैट हनुमान जी कैन गिव अ सोल्यूशन टू दिस। एंड ऑटोमेटिकली एक दो दिन बाद में सोते सोते ऑटोमेटिक एक ऐसी ब्रेथ आई जिससे मुझे लगा कि मेरे सांस में मेरे पेन में कुछ कमी आई है। आई फेल्ट द पेन हैज रिड्यूस्ड लिटिल। फिर वो करते गया तो मैंने बोला हाँ फर्क तो है कुछ। एंड देन आई कंटिन्यूड, एंड देन द पेन वाज गॉन टोटली। इट टुक अ मंथ, एक महीना लगा, बट देयर वाज, आई ओनली हैड इनर गाइडेंस फ्रॉम हनुमान जी। बट जैसे मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, वैसे हनुमान जी वैसे आके नहीं समझाया मुझे, अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवे, दैट पेन वेंट ऑफ एंड इट्स नेवर कम बैक। कई साल हो गए, इट्स नेवर कम बैक। पाइल्स की बीमारी, हैव यू हर्ड ऑफ पाइल्स? हेमोरॉइड्स, एनस में जैसे वो सूजन हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है। सो दीज आर ऑल कनेक्टेड। वो भी हुई थी मुझे, ब्लीडिंग भी हो जाती थी, नथिंग नाउ, सब क्योर्ड। तो जो ब्रेथ से वो ठीक हुई थी, उसका नाम मैंने रखा, मेरे मेरे मन में आया उसका नाम, हनुमान मास्टर ब्रेथ। वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। विद्युत बिहारी जी सेज, कैन ब्लड शुगर बी रिवर्स विद दिस? तो इसका मैं आपको एक, आई कैन नॉट गिव यू अ डेफिनेटिव आंसर, क्योंकि टेस्ट नहीं है, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया कि किसने ये किया, उसे कितने दिन में क्या लाभ मिला। सो सिंस आई डोंट हैव दैट, आई कैन नॉट से हाँ हो जाएगी ठीक। किंतु ये बता सकता हूं, मैं एवरी मील आई लाइक समथिंग स्वीट। चाय में, like when I go for a walk in the morning, when I go for a cup of tea with my friends, everybody has बिना चीनी की चाय, कम चीनी की चाय। I have double चीनी की चाय। So no signs of sugar in my body, zero। तो करेंगे तो मिलेगा, एंड डेफिनेटली आपको भी उसका लाभ मिलेगा। यदि इफ यू ब्रीद इन अ वे that your breath is able to bring whatever is required to every part of your body, तो डेफिनेटली आपका ये शुगर का प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है। करना आपके हाथ में, मैं गाइड करूंगा आपको, करना आपके हाथ में। एडवांस कोर्स में उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, ये इनिशियल कोर्स में, बेसिक कोर्स में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। सो नाउ वी कम टू द पार्ट, श्वास को शुद्धि क्रिया। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हफिंग टेक्निक, सेकंड हिस्सा है कंप्लीट योगिक ब्रेथ, और तीसरा हिस्सा है अनुलोम विलोम। तो ये एग्जिस्टिंग है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है सो दैट वी आर एबल टू एक्सपेल फ्लेम फ्रॉम द सिस्टम। तो बातें, बेली ब्रीदिंग के सिस्टम को चलते रहने दीजिए, जिसका हो पा रहा है, जिसका नहीं हो पा रहा है ट्राई करिए।
so that a little more belly breathing happens. Be in that state of belly breathing. Be relaxed so that belly breathing happens. और वो होते 2-3 बार होने दीजिए। और जैसे जैसे बेली ब्रीदिंग हो रही है, स्टमक को पर्टिकुलरली एकदम रिलैक्स्ड रखिए। पूरी सांस लीजिए भीतर, और फिर मुंह को ओपन करके, वाइड ओपन करके ऐसे जोर से करके बाहर की तरफ सांस फेंकिए। फिर से करिए, पूरी सांस लीजिए, पेट को एकदम रिलैक्स करके, और पूरी सांस छोड़िए। चली गई सांस। इसमें अब ये आपको करना है, एक बार अपने हा करके पूरी सांस निकाली, इसके बाद सांस लीजिए मत। डोंट ब्रीथ आफ्टर यू हैव डन द फर्स्ट हफ। इसको हफ बोलते हैं। आफ्टर यू डन द फर्स्ट हफ, डोंट इनहेल, रिलैक्स योर बेली अगेन एंड डू द हफ वंस अगेन। तो बिना सांस लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हा हा करके पूरी सांस छोड़िए, जितनी छोड़ सकते हैं। जब ये करेंगे तो जो स्टेल एयर है अपने श्वास, अपने लंग्स में अलग अलग जगह में जो स्टेल एयर है वो निकलेगा, और उसके साथ यदि कहीं पर कुछ म्यूकस, फ्लेम वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, तो पूरी सांस, पेट को रिलैक्स करिए, पूरी सांस लीजिए, एक, नो ब्रीदिंग, पेट को रिलैक्स करिए, फिर से पेट को रिलैक्स करिए, फिर से 3, रिलैक्स द बेली अगेन, 4, बिना सांस लिए एक बार और, फिर सांस लीजिए। आशा करता हूं समझ गए। फिर से लीजिए, अपने आप करिए, पूरी सांस, पेट को रिलैक्स कर दीजिए एकदम, पूरी सांस ले लीजिए जितना ले सकते हो आप, और फिर मुंह को पूरा खोल के 1, डोंट ब्रीथ, पेट को रिलैक्स, 2, अगेन डोंट ब्रीथ, पेट को रिलैक्स अगेन, 3, एक बार और, 4, 5। तो यदि एक कंटेनर जैसा रखें अपने पास में, मैं रखता हूं, कभी कभी कफ बनता है तो आई यूज दिस सो दैट आई डोंट हैव टू गो टू द बाथरूम अगेन एंड अगेन। या कोई बोल रख लीजिए, उस पर टिश्यू पेपर डाल दीजिए, तो जो भी कफ निकलता है इसमें डालेंगे तो आपको बार बार शौचालय की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सो यदि किसी का लग रहा है कि कफ निकल रहा है, किसी का निकल रहा है, इज एनीवन फीलिंग दैट सम कफ इज कमिंग आउट? एनीवन? नहीं लगता है कफ निकलने का कुछ हो रहा है? बताएं, एनीबॉडी फीलिंग? एनीवे, फिर से करिए, पूरी सांस लीजिए। सो बता रहा हूं, डॉक्टर हाउ मेनी टाइम्स डू वी नीड टू प्रैक्टिस, अभी बताता हूं। तो ये एक बार किया आपने, एक बार एक्सहेल किया, हा करके निकाला, 3-4 बार किया, ये आपकी एक सांस हो गई। फिर सांस लीजिए और फिर से वैसे ही करिए, 1, पेट को रिलैक्स, 2, पेट रिलैक्स, 3, पेट रिलैक्स, 4, पेट रिलैक्स करके 4-5 बार, जितने बार होता है, देन ब्रीद इन। किसे करना है, कितना करना है, कितना जोर देना है, लिसन टू योर बॉडी। If your body can accept a little more pressure, use a little more pressure. If your body cannot take the pressure, कोई तरह की बीमारी है, कोई तरह की असुविधा है, तो स्टार्ट जेंटल, धीरे धीरे शुरू कीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग हाँ यूट्यूब में डाल दूंगा, और उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो धीरे धीरे करिए, शुरू में थोड़ा कम प्रेशर डालिए, धीरे धीरे जब आपका शरीर एक्सेप्ट करने लगे तो उसको बढ़ाते जाइए। अभी इसमें और आगे जाएंगे, तो ये इसको 5 बार रिपीट करना है। करिए, एक बार अपने आप करिए,
मैं गाइड नहीं करूंगा अभी, मैंने बता दिया, वैसे ही करिए अपने आप स्वयं। माइल्ड फ्लेम फेल्ट, शिल्पा जी वेरी गुड। निकालिए, एक कंटेनर या कुछ रखिए पास में, यू कैन क्लियर योर थ्रोट एंड आउट, ऐसे कर सकते हैं। हाउ डू वी नो वी आर नॉट इनहेलिंग? इनहेल करेंगे तो आपको मालूम तो पड़ेगा कि सांस अंदर आ रही है, रेशमा जी। यदि ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सांस अंदर आ जाती है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे अपने बॉडी को ट्रेन करिए कि बिना सांस लिए आपको बाहर छोड़नी है। करिए, रिपीट करिए, कई बार रिपीट करिए। 4-5 हफिंग करिए, जितना होता है, कोई जरूरी नहीं कि 4-5 ही करना पड़ेगा। आई एम कफिंग अ लॉट, वेरी गुड। थ्रोट गेटिंग ड्राई, थ्रोट गेटिंग ड्राई तो ड्रिंक अ लिटिल वार्म वाटर। आई एम कॉफिंग वाइल ब्रीदिंग आउट। हाँ, ये जो कॉफिंग का सेंसेशन होता है व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, दिस इज अ साइन दैट समथिंग वांट्स टू कम आउट। तो जब जब ये कफ अपने शरीर में रहता है, द कॉफिंग रिएक्शन हैपेंस इन द बॉडी सो दैट इट कैन बी थ्रोन आउट। तो ये कॉफिंग सेंसेशन ऑन इट्स ओन इज नॉट अ बैड थिंग। इसका मतलब कुछ निकलना चाहता है। हाँ, गौरी जी को भी आ रही है खांसी, है ना गौरी जी? हाँ, यदि कफ निकलता तो निकालिए। Yes, you have to inhale forcefully. Sorry, you have to exhale forcefully, but the force should be only so much that your body is comfortable. Body को discomfort लगे तो slow down. Listen, understand this very well. बॉडी में कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट लगे, बेचैनी लगे, स्लो डाउन। बहुत समय है करने के लिए। I will guide you again so that you are able to do this. ये त्रिदोषा बैलेंसिंग प्रोग्राम we keep doing. I try to do it once a month so that more and more people can be benefited with this program. तो ये इसमें आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। कोई कारण से पूरी आगे तक ना जा पाए तो नेक्स्ट वाले में जुड़िएगा। आशा करता हूँ नेक्स्ट मंथ ना हो तो उसके नेक्स्ट मंथ में करूंगा। तो ये बार बार करते रहेंगे त्रिदोषा बैलेंसिंग प्रोग्राम, जितने लोगों को इससे लाभ मिल सके। चलिए करिए अपने आप, पूरी पेट रिलैक्स करिए, पूरी सांस लीजिए और हाँ, आवाज आनी चाहिए, वो निकालेगा आपके फेफड़ों में से जो भी है वहां। पेट रिलैक्स। रेशमा जी says my exhales are very short, inhale is long. आदत की भी बात है, धीरे धीरे चेंज कर सकते हो आप इसको। इनहेल आराम से पूरी इनहेल करिए और फिर एक्सेल विद अ पुश, विद द माउथ ओपन, हफ के साथ में 4-5 बार करके फिर ब्रेथ ले लीजिए अंदर। सो ईच वन ब्रेथ मीन्स 1 breath इन, 4-5 हफ्स, दैट इज 1 breath। फिर से करिए, पूरी सांस ले लीजिए और हा करके छोड़िए, पेट को रिलैक्स करिए, फिर से हा करके छोड़िए और देखिए कफ निकलता है क्या। किसका कफ निकल रहा है? विस्लिंग साउंड इज देयर। हाँ, पूनम श्रान जी, तो विस्लिंग साउंड इंडिकेट्स कि अंदर में कोई ना कोई कफ कहीं ना कहीं जमा पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो विस्लिंग साउंड आएगी। तो कई बार होता है कि आज आपको विस्लिंग साउंड नहीं है, कल मिल जाएगी, क्योंकि रिमेंबर लंग्स में कहाँ पर क्या क्या जमा पड़ा हुआ वी डोंट नो। और ये जैसे जैसे करेंगे वो अपनी जगह से हिलेगा, हिलेगा तो धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगा। कभी कभी आपको अनुभव होगा कि जो सांस जो निकल रहा वो बहुत थिक तरह का म्यूकस या फ्लेम है, मोटी कंसिस्टेंसी वाला, माने पुरानी, फिर पुराना कुछ जमा हुआ निकल रहा। कभी लगेगा कि खाली पानी टाइप का है या थोड़ा कमती कंसिस्टेंसी का है, वो मे बी इज नॉट सो ओल्ड। तो शुरू में वो पानी टाइप का ज्यादा निकलेगा और धीरे धीरे ओवर टाइम वो थिक वाला भी फ्लेम निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए गुरु जी, प्लीज। झटके से छोड़ना है या स्लो स्लो छोड़ना है? नहीं, स्लो छोड़ेंगे तो आप पूरा सी, लुक ऑब्जर्व मी, मैंने पूरी सांस ली और 1, 2, 3। बार बार इनहेल करना है फिर छोड़ते रहना है ना, या एक ब्रेथ लेके 3-4 बार छोड़ना है? जी हाँ, एक ब्रेथ लेके 3-4 बार छोड़ दो।
बट If उसमें anyone, बेली अंदर अंदर लेनी है, बेली के बेली को कुछ नहीं करना है। जब आप सांस छोड़ोगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपकी बेली अंदर जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो छोड़ने के बाद में पेट को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स करेंगे मैंने पेट अपने आप को एक तो थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, फिर से उससे करेंगे तो फिर से पेट अंदर की तरफ जाएगा। मतलब फिर एक दो ब्रेथ नॉर्मल लेना पड़ेगा ना हमको नॉर्मल होने के हाँ, लिए। वैसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 ब्रेथ ले लीजिए, फिर से पूरी ब्रेथ लेके हाँ हाँ करके छोड़िए। किसका कफ निकल रहा है मुझे बताएं। समथिंग मूविंग इन माय लंग्स, डॉक्टर राधा। हाँ, ये कभी कभी अलग अलग तरह के सेंसेशन हो सकते हैं कि कुछ जैसे कफ अपनी जगह से हिल गया, तो आपको ऐसा सेंसेशन हो रहा होगा। चलिए करिए, 5 बार करना है ये आपको, सबको 5 बार करना है कम से कम। पूरी ब्रेथ लीजिए। सर, लिटिल कफ केम, वेरी गुड सेजल, वेरी गुड। वॉमिटिंग सेंसेशन, शॉमी, स्लो डाउन, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये मैंने अपने नोटिफिकेशन में डाला है कि भोजन के तुरंत बाद ये नहीं करना, तो इट इज बेस्ट टू डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग में, आफ्टर 3-4 आवर गैप। 3-4 घंटे पहले कुछ खाए हुए हो तब आप ये करो, कोई परेशानी नहीं है। लिटिल सर थिक स्टिकी कफ। हाँ जी। हार्ट प्रॉब्लम या बीपी है तो नहीं करना है, करना है। ये मैंने इसीलिए बोला, आपका बॉडी यदि बोलता है कि नॉट कंफर्टेबल तो स्लो डाउन, कम करिए, थोड़ा धीरे करिए। धीरे धीरे बॉडी कैन बी ट्रेन टू डू मेनी थिंग्स। हाँ, बॉडी कैन बी ट्रेन टू डू मेनी थिंग्स। प्रीति जी, यू हैव टू गो आउट, ठीक है, सी द रिकॉर्डिंग, कल आइएगा टाइम से प्रीति जी। लिटिल थिक स्टिकी कफ, ट्रांसपेरेंट, शिल्पा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रिगर्ड bladder mean empty, also tricked bladder, is it also meant to empty? हाँ, एक बार बाथरूम जाके आ जाइए बिफोर यू स्टार्ट, तो अच्छा रहेगा। फिर वो ब्लैडर के ऊपर में कुछ वो फीलिंग नहीं आएगा। फिर से लीजिए, पूरी सांस लीजिए और 4 बार 5 बार करके हाँ हाँ करके छोड़िए। किसका कफ निकल रहा है मुझे बताइए। आई थिंक सुचित्रा जी का मेरा निकल रहा है ना। मेरा में आपका भी किसने बोला, ये राकेश जी, ओके, वेरी हाँ गुड। और किसका निकल रहा है, किसको हो रहा है कि कुछ कफ निकल रहा है, काइंडली आंसर। कितनी बार कर सकते हैं सर इस? तो ये एक बार सांस ली, 4-5 बार छोड़ा, ये एक हुआ। ऐसे 5 बार करना आपको। ये पहला हिस्सा। हफिंग टेक्निक के भी 3 हिस्से, ये पहला हिस्सा है हफिंग टेक्निक का। ये 5 बार कर लीजिए, फिर मैं दूसरे हिस्से पे आता हूं। 1-2 बार और कर लीजिए, आशा करता हूं 5 बार हो जाएगा। पूरी सांस लीजिए, 4 बार 5 बार कर हफिंग करके छोड़ दीजिए। फिर एक आराम से पूरी सांस लीजिए, फिर से रिपीट करिए। दिनेश जी, आपका निकल रहा है कफ, सुन रहा नहीं है। संध्या जी, नो कफ, थ्रोट ड्राइड, डन फैट, थोड़ा सा हल्का निवाया पानी, वार्म वाटर पी लीजिए, आराम मिल जाएगा ड्राइड कफ में, ड्राइड थ्रोट में। हाँ हाँ, मोर की आवाज। क्या बात है, किसके यहाँ से आई मोर की आवाज, किसके यहाँ से आई बताएं। नाम राकेश जी का खुला हुआ था, राकेश जी ने। राकेश जी का, ओके। नाइस। यानी कि वो राजस्थान में होंगे या यूपी की तरफ होंगे, आई थिंक उधर ज्यादा ये सुनने को मिलती है। गजब, फीलिंग फीलिंग ग्रेट आफ्टर हफिंग, वेरी गुड शिल्पा जी, सो ग्लैड, सो गुड टू हियर दैट। कफ निकला कि नहीं आपका शिल्पा जी। हाँ शिल्पा जी, कफ निकला थोड़ा। चलिए, जी हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ यू कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द हफिंग टेक्निक। इसमें क्या करेंगे, सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज, इस बार जब आप करोगे कॉन्शियसली ध्यान देकर, सबसे पहले
पेट के निचले हिस्से में थोड़ा आंतरिक प्रेशर डालिएगा, अंदर से जैसे स्क्वीजिंग कर रहे हैं आप, उस तरह से करिएगा। यदि वज्रासन में बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि सुखासन में है, चेयर में है, तो ठीक है, बट आई फील वज्रासन विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। वज्रासन में क्या होता है, आपकी बैक स्ट्रेट हो जाती है, पेट खुल जाता है, तो यू आर एबल टू टेक अ बिगर ब्रेथ और अ डीपर ब्रेथ। तो वज्रासन में बैठ सकते तो बैठिए, पूरी डीप ब्रेथ लीजिए, और जब हफ करेंगे इस बार, हफ के साथ में पेट के पहले हफ में पेट के नीचे हिस्से को दबाइए, अंदर से दबाइए, हाथ से नहीं, अपने आप स्क्वीज करिए, फिर नीचे और उससे थोड़ा ऊपर अंदर से स्क्वीज करिए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके फेफड़ों पर प्रेशर पड़ेगा। सो व्हेन दैट प्रेशर कम्स ऑन द फेफड़ा, ऑन द लंग्स, इट विल tend to move any phlegm, any cough that is collected over there, it will tend to move it out of the lungs. तो पहले, सबसे पहले नीचे की तरफ, तो पहला हाफ पहले नीचे में स्क्वीज करते हुए पेट को रिलैक्स किया, अब वो नीचे और उससे थोड़ा ऊपर, फिर पेट को रिलैक्स किया, फिर उन दोनों और उससे थोड़ा और ऊपर, तीनों जगह एक साथ, फिर और ऊपर छाती में, फिर सांस ले लीजिए। करिए करिए, नहीं समझ समझ में आया तो मुझे पूछ। सॉरी, something wants to come out. जी। सो उसी तरह से स्क्वीज करिए, जितने निचले हिस्से में, फिर उसके साथ थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर छाती में, जैसे स्क्वीज करेंगे। अभी जैसे मुझे कफ कफ आया ना, समथिंग वांट्स टू कम आउट, अभी निकलेगा थोड़ी देर में, करिए। रचना जी, नॉट क्लियर, क्या नहीं समझे रचना जी, व्हाट इज नॉट क्लियर? सर एक बार अभी आपका थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाएंगे आप, तब एक बार पूरा करके बताइएगा विदाउट ब्रेक के, बोले बिना, एक बार पूरा कैसे ब्रेथ लेके कैसे हमको करना है। जी एक बार पहले आप ठीक हो जाइए सर। जी, धन्यवाद। तो मैंने पूरी सांस ली, जैसे हफिंग टेक्निक में किया था पहले, वैसे ही हफ कर रहा हूं। हफ के साथ में अंदर से मैं पेट को स्क्वीज कर रहा हूं, अंदर से, बिकॉज मसल्स है ना अंदर में, तो अंदर के मसल्स से ही मैं स्क्वीज कर रहा हूं, पहले एकदम निचले हिस्से में पेट में, फिर निचले हिस्से में और उससे थोड़ा और ऊपर, हाँ निचले हिस्से में, फिर यहाँ और थोड़ा यहाँ, जी फिर यहाँ दोनों और थोड़ा और ऊपर, जी और फिर एकदम ऊपर तक, पूरा सब एक साथ में। जी जी। एक बार बिना बोले बताइए उसको पूरा प्रैक्टिकल कर, समझ नहीं पाएंगे ना, देखेंगे कैसे आप, दिख रहा है। जो हो रहा है वो आंतरिक प्रक्रिया है, हाउ विल यू हाँ नोटिस? परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार देखने से नहीं सांस समझ पाएंगे। सांस लेके कितनी बार छोड़ा आपने? You don't have to do मूलबंध like you do contraction that way. करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये उषा जी का प्रश्न था। सॉरी, क्या बोल रहे हो आप कृष्णा जी? मैं बोल रही हूँ कि एक बार इनहेल करके हमने कितनी बार छोड़ना है उसको? जितने बार आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है। मेरा बॉडी 4-5 बार कर सकता है, क्योंकि मैंने ये जो क्रियाएं कर रहा हूं, मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूं, तो मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ गई, सीओपीडी का जो इफेक्ट था खत्म हो गया, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसी होती थी वैसी नहीं है, बट जो डैमेज किया कहीं ना कुछ तो डैमेज रहा ही है। लाइक दिस सर, एक बार मैं बता दी।
नहीं नहीं, थोड़ा और इंटेंसिटी लाइए, जपते हुए। निकला कफ, अभी निकला थोड़ा। तो जब वो जमा हुआ है, थोड़ा भी एयरवेज की तरफ में आना शुरू करेगा, तो ये कॉफिंग रिफ्लेक्स होगा अपने आप, उससे उससे कफ बाहर निकलेगा। पहले तो ये अवस्था होती थी, ये जो कंटेनर है कम से कम आधा भर जाता था कफ से। आई यूज्ड टू थिंक माई बॉडी इज लाइक अ फ्लेम फैक्ट्री, म्यूकस फैक्ट्री है जैसे मेरा शरीर, ऐसा अनुभव होता था। अब तो खैर बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब मैं सर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जिन खाद्य पदार्थों से, जिस खाने से ये कफ बढ़ती है, उसको भी खा लेता हूँ, बिकॉज नाउ आई एम एबल टू हैंडल इट बेटर। पहले वो सब अवॉइड करता था, जैसे दही नहीं खाता था, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाता था, कोकोनट वाटर यूज टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठंडा तो कुछ पीता ही नहीं था। अब तो सब एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। जी सॉरी शिल्पा जी, बोले। sorry to interrupt. जी बताएं। But I had a surgery, a major surgery 6 months back. So I'm a yoga practitioner. तो काफी टाइम तक मैं पेट की मसल्स मना था मूव करना, एंड आई वाज पुट इन अ वेरी हाई, जैसे बहुत ओटी जो था ऑपरेशन थिएटर, उसमें टेम्परेचर बहुत लो था, सो आई वाज लाइक कंप्लीटली शिवरिंग, एंड देन मंथ अगो आई हैड वेरी हाई फीवर, 104 3 4 दिन तक रहा एंड स्टफ। अच्छा। सो आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ फ्लेम, जो ब्रेथ नहीं आ रही थी ठीक से। जी। But तो after this, I think my stitches and all have healed also. So जी that's why I attended your class, because it's 6 months now, and जी, I'm feeling very good and सो safe हैप्पी, also. ऐसा नहीं सो है हैप्पी। कि जी stitches पे या पेट पे असर आया। जी, I'm feeling good. Thank you very वंडरफुल। much. नहीं नहीं नहीं, नॉट प्रॉब्लम, इट्स माय, ये मेरे लिए सेवा करने का एक बहुत अच्छा मौका है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हनुमान जी ने मुझे ये सेवा का मौका अपॉर्चुनिटी दिया, दिया, मौका दिया है। अवसर दिया। नहीं नहीं, आई लाइक टू यूज हिंदी वर्ड्स। Yes, सेवा का मुझे अवसर, अवसर, अवसर 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 दिया, दिया। अवसर अवसर, दिया। हाँ right, जी हाँ। right. आई थिंक जी, सर इसमें उसका थायराइड में भी फर्क आएगा। धीरे धीरे आएगा उसमें भी। देखिए रिमेम्बर वन थिंग, जैसे जैसे आपकी ब्रेथ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, इट विल इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आई लिस्टेड सम ऑफ द कंडीशंस जो मैंने ब्रेथ वर्क से ठीक किए, सिर्फ ब्रेथ वर्क से, नथिंग एल्स। मेन में देर इज अ कंडीशन कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग फ्रैंकली, माने इरेक्शंस खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ब्रेथ से ठीक होगी। आई टीच दैट इन वन माय कोर्सेज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वुमेन का भी सिमिलर चीज होती है, जब वो स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह से विमेन के भी सेक्सुअल अराउजल कम हो जाता है। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज कि दिस इज एन एनर्जी, एंड इट्स अ क्रिएटिव एनर्जी। जब ये सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव होती है अपने शरीर में, द बॉडी और द सिस्टम हैज द एबिलिटी टू क्रिएट अ लाइफ, जीवन उससे उत्पन्न हो सकता है। और इसको आप कंटेन करोगे, चैनल करोगे, then you can use it to create other things in life. But you must have this energy. ये एनर्जी खत्म हो जाए, that is a problem. यदि ये एनर्जी खत्म हो जाए, इसका मतलब आपके स्वादिष्ठान मूलाधार में वीकनेस आ गई है। यदि उस एरिया में वीकनेस आ गई है, तो आप अपने जीवन को कैसे संचालित कर पाओगे पूरी तरह से? So therefore regaining that energy is very important, and with breath work this can be done. जी, चलिए करिए फिर से, पूरी सांस लीजिए, एंड हफिंग करते हुए, स्क्वीज करते हुए सांस छोड़िए। और किसका निकल रहा है कफ? इज इट नॉर्मल टू वॉमिट? नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल टू वॉमिट, बट यदि कोई कारण से थोड़ा सा आ गया, आपने थोड़ा अधिक प्रेशर डाल दिया, कुछ देर पहले ही आपने कुछ खाया था, सो इफ दैट इज हैपनिंग, देन मे बी यू गेट द सेंस that there is a little vomiting happening or whatever, but it's not normal for vomit to happen with the technique. I've been doing this for such a long time, I never get the thing that I'm going to vomit. So ideally, just do it on an empty stomach.
और अ नियर एम्प्टी स्टमक। पूरी सांस लीजिए और स्क्वीज करिए, करते करते हफिंग करिए। सॉरी, सो सॉरी। देखिए मेरा निकला कफ। Having cold, so phlegm coming out. Yes, Dharani ji, that's right. फ्लेम निकल रहा था, अच्छा। और किसका निकल रहा है फ्लेम? करते रहिए, सबको ही करते रहिए। रचना जी, शिल्पा जी तो कर रही हैं, दिनेश जी, राम प्रसाद जी, उषा जी, करते रहिए। सुचित्रा जी, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए सो आई कैन सी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और नहीं कर रहे हो तो मैं आपको स्कूल टीचर की तरह डांट भी सकता हूँ फिर। हाँ ड्यू, आई होप यू वोंट माइंड जब मैं आपको डांट दूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बट आई वांट टू सी, टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज। स्नीजिंग, हाँ तो स्नीज हो रहा है तो भी कुछ निकल ही रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए स्क्वीज करिए पूरी बात। स्क्वीज करते करते ऊपर की तरफ लाइए। ये 5 रेपिटेशन इसके हो जाए, हो गए। करिए गौरी जी, करिए, वेरी गुड। स्क्वीज करिए हफ के साथ में, और 5 बार हो जाए तो मुझे बताइएगा। रचना जी का हो गया, वेरी गुड। राम प्रसाद जी का कफ निकल रहा है, वो बाहर गए। और किसका निकल रहा है फ्लेम? किसका कफ निकल रहा है? हु एल्स इज एक्सपेलिंग? डॉक्टर रीटा, गौरी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका बहुत निकल रहा है कफ? एनीबडी गेटिंग द सेंसेशन कि लॉट ऑफ फ्लेम इज कमिंग? वैसे डॉक्टर राधा, जस्ट जस्ट फॉर योर, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इन डिटेल, राधा जी आप हो? मेरा राकेश शर्मा जी बहुत निकल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितना कफ निकलेगा उतनी आपकी श्वास अच्छी होगी। उषा जी निकल रहा है आपका कफ? नहीं है, बॉडी में कफ नहीं है, अच्छा नहीं है तो वेरी गुड। हाँ डॉक्टर राधा, विच रिमाइंड्स मी आपके प्रश्न से कनेक्टेड, इन वन ऑफ माय अर्लियर त्रिदोषा बैलेंसिंग प्रोग्राम्स एक ऐसी केस हुई थी जिसमें वन लेडी आंसर कि उनका वॉमिटिंग हुआ, बहुत सारा कफ निकला, बहुत सारा कफ, सो मच कफ दैट शी वाज अमेज्ड कि इतना कफ कैसे निकल सकता है। तो यदि वैसा कुछ हो रहा है तो इट्स इट्स गुड आपके साथ में। चलिए वेरी गुड। 5 बार हो गया सबका, 5 रेपिटेशन हो गया, गुड। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द हफिंग टेक्निक। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे? सेम जैसे आपने पहले सांस लिया, पूरा सांस लिया, और जब आप व्हेन यू हफ एंड यू ब्रीथ आउट, नाउ यू विल ब्रिंग योर अटेंशन टू द बैक। सो bring your attention to the lower part of your back and internally do a squeeze along the lower back. अंदर से स्क्वीज करिए लोअर बैक में, एक लोअर, सेकंड में लोअर और थोड़ा हायर। तो जिस तरह से सामने में आपने स्क्वीजेस किए थे, डू द सेम थिंग नाउ along the back. Start with the lower back, then lower and slightly higher, then lower, slightly higher and still higher. इस तरह से करते हुए ऊपर तक लाइए। Somebody is calling, I'll just take the call, excuse me. ममता जी राम राम, अभी क्लास चल रही है, लिंक नहीं हो रहा, तो मैंने तो शेयर कर दिया था ग्रुप में। अभी बस 10-15 मिनट और आज, आज आज का वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो देख के प्रैक्टिस करना, कल टाइम से जुड़ जाना। हम्म?
मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वीडियो का लेके। नहीं, नंबर पे नहीं भेजूंगा, नंबर पे नहीं, ग्रुप में रहेगा। ग्रुप में हो ना आप? त्रिदोषा बैलेंसिंग ग्रुप जो है ना, उसमें आपको लिंक लिंक भेजा था मैंने जी। जी, अभी नहीं भेजूंगा, ग्रुप में होने के बाद में तब भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अच्छा अच्छा, राम राम। Squeezing the buttocks, no, not necessarily buttocks, buttocks से little higher, माने लोअर बैक, नॉट द बटक्स, बटक्स से थोड़ा ऊपर की तरफ में। फिर उधर में जैसे सामने में किया, लोअर देन हायर देन हायर देन हायर, उसी तरह से अलोंग द बैक। फर्स्ट इन द लोअर बैक, देन लोअर एंड स्लाइटली हायर, देन लोअर स्लाइटली हायर एंड स्टिल हायर, इस तरह से करके जैसे ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हो। when you start doing this, when you, oh, sorry, I hope you can hear me. When you start doing this along the back, you start working on your sushumna. Sushumna nadi works its way from the tailbone to the सहस्त्रार। तो जैसे जैसे आप ये करोगे, क्योंकि बहुत बार ये जो सांस भारी लगती है वगैरह वगैरह, ये सुषुम्ना में ब्लॉकेज है। तो ये जब आप करोगे धीरे धीरे सुषुम्ना क्लियर होगी, और सुषुम्ना को कैसे क्लियर करना वो आगे सिखाऊंगा। बट अभी आपको ये करना, स्क्वीज करिए लोअर बैक में, फिर लोअर एंड स्लाइटली हायर, देन स्टिल हायर, इस तरह से करके पहले एकदम नीचे, फिर नीचे और ऊपर थोड़ा और एक साथ में, फिर और थोड़ा ऊपर, इस तरह से करके ऊपर लाइए। चलिए करिए सर पहले एक दो ब्रेथ नहीं पता चला, अब पता चल रहा है। जी जी। सर अटेंशन ले जानी है अपनी लोअर बैक में, हाँ, टेक योर अटेंशन टू द लोअर बैक एंड स्टमक as इज you आल्सो गेटिंग स्क्वीज्ड। squeeze। सामने तो कर लिया आपने, सो नाउ द अटेंशन इज ऑन द बैक, लेकिन साथ में बिकॉज स्टमक भी हो रहा है स्क्वीज। थोड़ा हो रहा तो होने दीजिए, डजंट मैटर, इट्स ओके। Xiaomi says first lot of phlegm just came. Oh, first lot of phlegm just came. Okay, Xiaomi, very good. तो काफी निकला क्या आपका फ्लेम, Xiaomi जी? लिटिल, ओके, चलो जो भी निकला अच्छा। डॉक्टर राधा, आपका निकल रहा है फ्लेम? डॉक्टर राधा, ठीक है, चलिए वापस करिए। इसको भी 5 बार रिपीट करना है। पूरी सांस ले लीजिए और सुचित्रा जी, फ्लेम इज कमिंग, वेरी गुड, मेरा भी निकल रहा। सो दिस व्हाट आई डू, जब वो लगता है कि निकल रहा है, आई क्लियर इट, आई यूज लाइक टू यूज अ हैंकरचीफ, इस तरह से करके निकल जाता है। सभी को आ रही है तो हाँ जी, जावा। हाँ क्या बोल रहे हो? चलिए फिर से करिए। सर इसमें कमर पे थोड़ा प्रेशर भी लगाना पड़ रहा है ना, तो हाँ, थोड़ा प्रेशर लगाना स्क्वीज, पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा स्क्वीज करते जाइए जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। इफ योर बॉडी इज नॉट हैप्पी विद द स्क्वीज, स्लो डाउन, little gentle squeeze. Don't not do it, do a little gently. If there is any discomfort, if there is no discomfort, you are young, you are healthy, you can use a little extra pressure. I use a lot of pressure because now my body is used to it. Maximum how many times these? So in the huffing technique, first just the huffing technique 5 times, then the squeezes along the front 5 repetitions, and then the squeezes along the back 5 repetitions. 1 repetition means एक बार पूरी सांस ली और 3-4 बार हफिंग करके, 3-4-5 बार जितना आपका बॉडी अलाउ करता है उतने बार स्क्वीज करते करते ऊपर चले जाइए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्निक कॉल्ड द हफिंग टेक्निक। हफिंग टेक्निक के 3 हिस्से हैं, ये आपने आज सीखा। टुमारो प्लीज डू दिस ऑन योर ओन इन द मॉर्निंग। ऑब्जर्व करिए हाउ मच योर फ्लेम इज कमिंग, सांस में क्या फर्क लग रही है, और वंस यू स्टार्ट द प्रोसेस,
Then as you go deeper, more and more phlegm will come out until such time as your body becomes relatively free of phlegm. धीरे धीरे कम हो जाएगा तो भी निकलेगा, बिकॉज पोल्यूशन इतना है. मैक्सिमम आई वुड से ऑलमोस्ट 100% of the people have some phlegm in their body and it affects the breathing. किंतु जिसको ज्यादा नहीं होता या किसी का ज्यादा लंग्स में जमा है, then they are not aware, they don't know how much to do. So as you continue doing this over the next few days, you will notice it's changing, phlegm is coming out. हाँ सुचित्रा जी. सर गला तो थोड़ा क्लियर हो गया पर नोज नहीं क्लियर हो रहा. हाँ वो भी धीरे धीरे होगा clear. वहां See, काफी लग रहा है जैसे है. जी. तो when we are doing the squeezes along the back, this squeezing is pushing the phlegm up the spine. ये इसको निकालने के लिए गार्गल करना आवश्यक है. So in the morning at least gargle once. If your body has a lot of phlegm, gargle twice. और gargle कैसे करना है? Warm water, add a little salt. If you can add a little haldi, even better. Yadi, if you do this with chai, with the tea water, not with doodh, but only the tea bag, the tea liquor, can be black tea, can be green tea, both are okay. उससे करेंगे तो और अच्छी cleansing होगी. So make it a habit to gargle at least once a day with tea and salt and a little haldi if you don't mind. Because when you use haldi, your wash basin may feel a little yellow, stained or whatever. So if you know how to handle that, then you can use a little haldi. Otherwise, do with tea. A lot of phlegm came out, Dharani ji. Very good. Thank you. Where are you, Dharani ji? I can't see you. धरणी जी आप कहाँ हो? आपको देख नहीं पा रहा हूं. आप कुछ बोलोगे तो शायद देख पाऊंगा. धरणी जी, you said lot of phlegm came out. I'm so happy. Oh, bandwidth issue. Okay, no problem. Right. So this is the basic technique of the huffing technique or the first part. इसको आप कल अपने आप कर लीजिएगा. In the evening, when we meet, I will show you the second part of the Shvasko Shuddhi Kriya, which will take your cleansing to a deeper level. हाँ, but इसको practice करके आइएगा and send your report. आपने क्या notice किया? Feeling so much better. That's wonderful. हाँ, धरणी जी. हाँ, जैसे जैसे कफ निकलेगा, you'll feel so much better. And as you go deeper into the process, as you understand it and use it better, आपको और अच्छा result मिलेगा. So please do this in the morning at least once. If you want to do it before the session tomorrow, even better, no problem. तो ये कर लीजिएगा, gargle कर लीजिएगा. At least gargle once. If you like, you can even gargle twice. Any questions so far today? And Anybody, belly any breath- questions? Yeah, belly breathing is like it should be your way of life, Yes, right? it should become your normal breath. Ji Kauri ji. Anyone else? Anything else? Yeah. गुरुजी, जी डॉक्टर मैं राधा बोल रही हूँ. जी बोलिए. मेरे को कफ ही नहीं निकला गला से, लेकिन सिम्टम्स भी नहीं दिख रहा है हाई तो करके. कई बार होता है कि वो कफ जो होता है थिक हो जाता है, लंग्स में बैठ जाता है अंदर में, नहीं निकल रहा अभी, 1-2 दिन बाद में शायद निकलेगा. डजंट मैटर. ओके ओके और ओके जितनी ब्रीदिंग इंप्रूव कर सकते हो उतना अच्छा है. ओके. जी डॉक्टर राधा, यू वर सेइंग समथिंग. Yeah, I just had twice vomiting and there was some cough, but still I feel it's coming in my nose and it's just entering my throat again. Yes. So gargle. You can Okay. gargle now also if you don't mind. Okay, done. Thank you. Not at all. Right. So we will end So for one today. question. So जी one बोलिए. question. बोलिए बोलिए. हम इस सेशन के कितनी देर बाद खाना खा सकते हैं? आधे घंटे बाद में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. 15 And मिनट is बाद में it खा लीजिए. okay? And this is kind of lymphatic drainage हो रहा है ना? लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा है. I लिम्फेटिक know how ड्रेनेज भी to drain. important. That's अच्छा. why I know the points and everything. So that's why I asked. Okay. It's connected to that only. जी जी जी. Right. So Thank you nice. very much, sir. Thank you. Thank you so Thank you. much. Anybody else? Shall we end for today? I will share the video link after some time. I'll post it on YouTube. Share the link in the group.
or if you have anything to say, any questions to ask, please ask in the group. Keep your feeling excellent. So happy to hear that, Xiaomi ji. Thanks a lot. Thank you. Thank you too. So I'm so happy to see कि आप लोगों को, कुछ लोगों को already कुछ रिजल्ट मिल रहा है. As we go deeper, you'll get even better results. और जब आप एडवांस कोर्स करेंगे तो you'll get even still better results. So please continue. Join early tomorrow. Please join by 6 o'clock so that we can start on time. ठीक है? कोई प्रश्न है, कुछ भी है तो ग्रुप में शेयर करिएगा. And if you wish to share some of your experiences, you can do that. Some of you have, like some of you said you're feeling very good, etc. तो ग्रुप में शेयर करिए. You can inspire others. So it's a good thing. बहुत धन्यवाद. And कल आपसे फिर इसी समय मुलाकात होगी. And आशा करता हूँ इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्ते. आत्मबल. नमस्ते. नमस्ते.